ایک ایسا شخص جو نہ ہوتا تو شاید آج بھی مسلمان ایک ہوتے، نہ عرب کے ٹکڑے ہوتے، نہ فلسطین بٹتا، نہ وہاں اسرائیل بستا، اور نہ آج دشمن ہماری حالت پر ہنستا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو نہ عراق ختم ہوتا، نہ شام پر بمباری ہوتی، نہ یہودی قطر پر میزائل مارتا، نہ ایران پر حملہ کرتا، نہ پاکستان کو دھمکاتا۔ وہ نہ ہوتا نہ غزہ میں نسل کشی ہوتی، نہ مدد کو جانے والے 44 ملکوں کو روکنے کی ہمت ہوتی۔ فراز سے لے کر عرب تک آج بھی خلافت باقی ہوتی۔ مسلمان ملکوں نہیں بٹے ہوتے، بلکہ ایک خلافت، ایک نظام، ایک قانون پر زندگی گزار رہے ہوتے۔ وہ ہے اللہ کا قانون۔ مگر کون ہے وہ تاریخ کا اتنا بڑا جاسوس جو عرب کو توڑ گیا، یہودیوں کو جوڑ گیا؟ اس کے کئی روپ تھے۔ تھا تو وہ گھروں میں کام کرنے والی میڈ کا ایک ناجائز بچہ، مگر عربوں نے سمجھا اسے اپنا ہمدرد اور سچا۔ وہ کراچی میں ایک معمولی میکینک بھی تھا، ادھر عرب کے صحراؤں میں تیز اونٹ دوڑانے میں ایکسپرٹ بھی تھا۔ وہ ڈبل کراس سیکرٹ ایجنٹ بھی تھا اور گوریلا وار کا ماہر بھی تھا۔ آرکیولوجسٹ بھی تھا مگر سولجر بھی تھا۔ ہاں، وہ شاعر بھی تھا، برنارڈ شاہ کے لیول کا رائٹر بھی تھا۔ وہ ایک لیجنڈ بھی تھا اور مت بھی، ایک ڈپلومیٹ، ایک کانسپریٹر بھی، ایک بہروپیہ اور ایک گے بھی۔ کبھی لائم لائٹ میں آتا تو کبھی گمنامی میں چلا جاتا۔ جس نے ارطغرل کے بیٹے عثمان کی 3 بر اعظموں پر پھیلی 6 سینچری امپائر کو کرچیوں میں بکھیر دیا۔ ایتھن ہنٹ، جان ریمبو، جیمز بانڈ تو فلموں کے کردار ہیں، وہ ریئلٹی میں ان سب کا کمبینیشن تھا۔ 20ویں صدی کا سب سے مشہور انگلش مین، عربوں کا انوکھا ساتھی، تھامس ایڈورڈ لارنس، المعروف دی لارنس آف عربیہ۔ Lawrence of Arabia's Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia's ایک انگریز، ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت، اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کے چیتڑے اڑ گئے، اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے۔ ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تقسیم کر لیے۔ تو چلیے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رضا ویڈیو کال کر رہا ہے؟ ہاں بولو رضا، خیریت؟ موزم بھائی میری بائک خراب ہو گئی، میں لیٹ ہو جاؤں گا، سوچا آپ کو ویڈیو کال کر کے ثبوت دے دوں۔ یہ دیکھیں میکینک بائک بنا رہے۔ لارنس آف عربیہ، کراچی کی شارع فیصل پر؟ رضا کیا تم 1928 میں چلے گئے ہو؟ آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے بھی اسی دور میں جانا پڑے گا۔ سن 1928۔ اچھا، اب جو کوئی کراچی آیا ہے وہ شارع فیصل سے ضرور گزرا ہوگا۔ اس کا پرانا نام ڈرگ روڈ تھا۔ جہاں رضا کی بائک خراب ہوئی وہیں پی اے ایف فیصل بیس ہے۔ ورلڈ وار 2 میں یہ برٹش انڈیا رائل ایئر فورس کا بڑا ہی اہم ٹرانزٹ ایئر بیس تھا، کراچی کا اکلوتا ایئرپورٹ۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد گوریلا جنگ کا ماسٹر لارنس جان ہیومراز بن کر رائل ایئر فورس میں ایئر کرافٹ میں بھرتی ہوا اور کراچی آ کر جہازوں کا تیل پانی چیک کرنے لگا۔ اچھا، یہ جگہ وہی تھی جہاں پچھلے مہینے کراچی والے کمر تک ڈوبے ہوئے تھے، لیکن 100 سال پہلے عرب کے ریگستانوں جیسی تپتی ریت اڑا کرتی تھی یہاں پر، اور ڈیزرٹ سے بھلا لارنس کیسے دور رہ سکتا تھا؟ خود لارنس نے یہ بات برنارڈ شاہ کی وائف شارلیٹ کو ایک خط میں بتائی تھی۔ مگر لارنس کراچی آیا ہی کیوں تھا؟ یہ بتانے سے پہلے آپ کو وہ کہانی سناتا ہوں کہ آپ بھی کہیں گے کہ یہ پیدا ہوا ہی کیوں تھا۔ یقیناً آپ نے سبسکرائب تو کر ہی لیا ہوگا۔ برطانیہ کے 7ویں سردار یعنی 7th بیرونیٹ تھامس رابرٹ کو گھر میں کام کرنے والی میڈ سارا اچھی لگنے لگتی ہے، اور پھر کچھ ہی وقت بعد سارا ایک ایسے بچے کو جنم دیتی ہے جو فریب میں سب کا کنگ تھا۔ ایسا بچہ جو بڑا ہو کر اس وقت کے سب سے بڑے امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کو توڑنے والا تھا۔ مگر اس بچے کا باپ کوئی نہیں تھا، جائز باپ۔ جی ہاں، کیونکہ تھامس رابرٹ اس ماسی سارا سے شادی نہیں کرتا، اور یہ بچہ اس کی 5ویں مگر ناجائز اولاد تھی۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، لارنس آف عربیہ ہی تھا۔
जिसे होश संभालने के बाद जब पता चला कि वो अपने बाप के 5 बच्चों में से एक नाजायज बच्चा है, तो उसी एंगर में उसने पूरी उम्र शादी नहीं की। वो औरत के नाम से ही दूर भागता। आगे चलकर उसकी कुछ मर्दों से दोस्ती हुई थी, जिस वजह से उस पर गे होने के भी इल्जामात लगे। वो किताबों में छुप गया, पेन और फटीग बर्दाश्त करने के लिए अपने जिस्म को ट्रेन करने लगा। स्टैमिना बढ़ाने के लिए 2-2 दिन भूखा प्यासा रहता, कभी स्विमिंग करता तो कभी हाइकिंग, और साइकिलिंग तो इतनी की कि सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाता। ये सब यूं ही नहीं था, दरअसल उसका जिस्म फ्यूचर के लिए ट्रेन हो रहा था। वो खेलने वाले बच्चों से अलग ख्यालों में गुम रहता। मॉडर्न हिस्ट्री उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। पढ़ाकू था, तभी ऑक्सफोर्ड में स्कॉलरशिप भी मिली। अब यहीं ऑक्सफोर्ड में ही उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आता है जो उसे जिंदगी का मकसद देता है। ऑक्सफोर्ड में उसे सर होगर्थ मिले, जो मिडिल ईस्ट में इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके थे। होगर्थ ने लॉरेंस को वॉर स्ट्रेटेजी और हिस्ट्री पढ़ाई। उधर लॉरेंस को सलेबी दौर के किले बड़ा फैसिनेट कर रहे थे। वो अभी सिर्फ 20 साल का लड़का था जब पैदल ही शाम और फलस्तीन के लिए निकल पड़ा, और फिर शाम आकर सलेबी दौर के किलों को नजदीक से देखा। अच्छा हाँ, यहाँ वो डाकुओं की गोली का निशाना भी बना। हलब के अखबारों ने तो उसकी मौत की खबर भी छाप दी, मगर वो जिंदा था। और फिर ऑक्सफोर्ड से ऑनर्स करने के बाद उल्टे कदमों मिडिल ईस्ट लौट गया। अब वो एक मिशन पर था, ऐसा मिशन जो मुसलमानों को हमेशा के लिए बखेरने वाला था। लॉरेंस ने मौजूदा लिबनान के शहर जबील में ऐसी अरबी सीखी कि अरबों को भी पीछे छोड़ दिया। उसका सारा वक्त अरबों और तुर्कों के दरमियान ही गुजरता था। इसीलिए वो अपनी किताब में लिखता है कि अरबों का लिबास, वैश्यों सा खाना, सख्त मौसम, बदुओं और तुर्कों का साथ एक अजाब से कम नहीं था। मगर अरबों का ट्रस्ट हासिल करने के लिए उसे ये सब करना पड़ा, उन जैसा लिबास पहनना पड़ा। इस रफ एंड टफ लाइफ में उसने 2 साल गुजारे। वो 4-4 महीने एक ही कपड़ों में गुजार देता। यहाँ एप्पल का बानी स्टीव जॉब्स याद आ गया, जो इसी तरह गंदा सुंदा रहता था। कई फीट दूर से भी बदबू आती थी। ये वाकया कभी और से ही, मगर आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि मुस्लिम, ज्यूज और क्रिश्चियंस के लिए सिनाई पेनिनसुला बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को 10 कमांडमेंट्स मिले। यहूदी फिरौन से बचकर 40 साल यहीं भटकते रहे। ये एशिया और अफ्रीका के दरमियान 60,000 स्क्वायर फीट का एक ट्रायंगुलर डेजर्ट था। यूं समझो कि ये दुनिया में मिलिट्री और ट्रेड की शहरक है, क्योंकि सुइस कैनाल भी यहीं है। इसे जहन में रखिएगा, क्योंकि लॉरेंस इसी मकाम पर एक खतरनाक प्लान बनाने वाला था। यहीं उसने अपना फाइनल राउंड खेलना था, मगर इस सब के लिए उसे अरबों को फंसाना था, उन्हें तुर्कों के खिलाफ उकसाना था। ये 1910 था और लॉरेंस बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस में स्पाई बन चुका था। अरबों को दिखाने के लिए वो सीरिया के तारीखी इलाके कारकमिश में खुदाई का काम कर रहा था, लेकिन असल में कारकमिश में बर्लिन से बगदाद जाने वाली रेलवे लाइन की डिटेल्स लेना चाहता था, जिसे जर्मन इंजीनियर्स ने बनाया था। वो इस रेलवे लाइन की डिटेल क्यों इकट्ठी कर रहा था, अभी पता चल जाएगा। बहरहाल 4 साल लॉरेंस इन्हीं इलाकों में रहा जो ऑटोमन अंपायर का हिस्सा थे। कॉलेज के एक फ्रेंड ने उसे सीनाई सर्वे में इनवाइट किया। दिखने में तो ये एक आर्कियोलॉजी प्रोजेक्ट था, मगर असल में ऑटोमन आर्मी पर स्विस की जानिब नजर रखना था। दरअसल ब्रिटिश आर्मी देखना चाहती थी कि सल्तनत उस्मानिया की ऑटोमन आर्मी कितनी खतरनाक है, कहां कितने फौजी तैनात हैं, उन्हें कैसे ढेर किया जा सकता है। इस बेयाबान सहरा में कई ब्रिटिश स्पाइज आर्कियोलॉजिस्ट बनकर फैले हुए थे। उधर सल्तनत उस्मानिया इनकॉम्पिटेंट मोनार्की की वजह से खोखली हो चुकी थी। अंग्रेज टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंटेलिजेंस में भी आगे थे। लॉरेंस जब किसी तुर्क फौजी या लीडर से मिलता तो उसका लाइफ स्केच बना लेता। वो इन दिनों काहिरा में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में था जब उसने उस्मानी फौज के अरब प्रिजनर से इंटरव्यू शुरू किए, और यहाँ उसे फितना फैलाने के लिए एक की पॉइंट मिल गया। उसे अंदाजा हुआ कि अरब तुर्कों से शदीद नाराज हैं, जर्मन्स के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस से परेशान हैं। अब उसके शैतानी दिमाग ने तुर्कों के खिलाफ सारा प्लान तैयार कर लिया। अगर अरबों को उकसाकर उस्मानी फौज में रिवोल्ट मचा दिया जाए तो ये सल्तनत खत्म हो सकती है। सन 1914 आ गया। एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैली द ग्रेट ऑटोमन अंपायर लरस रही थी। जो कौमें 400 बरस तक सल्तनत उस्मानिया के सामने आने से डरती थीं, अब हाइनस बनकर टूट पड़ी थीं।
फ्रांस ने अल्जीरिया और ट्यूनीसिया पर कब्जा कर लिया, बरतानिया ने मिस्र, इटली ने लीबिया, जबकि ऑस्ट्रिया और हंगरी ने बोस्निया को काबू कर लिया। अब ब्रिटिश को सुइस कैनाल और न्यूली डिस्कवर्ड ऑयल पर कब्जा करने के लिए सीरिया और अरेबिया को कंट्रोल करना था। वहां अब भी तुर्कों का होल्ड था। उधर लॉरेंस बसरा के एक होटल से खुफिया सेंटर ऑपरेट करने लगा। उस दौर में मिलिट्री एक्टिविटीज का सेंटर मिस्र था। वो यहां से एजेंट्स भर्ती करता और अहम सीक्रेट्स इंग्लैंड ट्रांसफर कर देता। यहां उसने अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए एक ड्रामा भी रचाया। एक रोज बसरा की मस्जिद में पहुंचा और झूठ मूठ का इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद वो अरबों में एक नेक शख्सियत के तौर पर मशहूर हो गया। वो अरब के सरदारों को गद्दार और बागी बनाने लगा। लॉरेंस जानता था कि जर्मनी को काउंटर करने के लिए ऑटोमन अंपायर को गिराना होगा। यहां से शुरू हुआ लॉरेंस का असल मिशन। उसका टारगेट था हिजाज, जो आज सऊदी अरेबिया है। इन्हीं दिनों उसे तुर्कों के नरगे में फंसी ब्रिटिश फोर्स को बचाने का टास्क मिला। इस मिशन में तो वो नाकाम हुआ, मगर यहीं से उसे अरब रिवोल्ट के लिए एक ऐसा लीडर मिल गया जिसको वो बड़ी आसानी से अपनी बातों में उलझा सकता था। ये थे शरीफ मक्का हुसैन बिन अली। शरीफ मक्का का लॉरेंस ने ऐसा ब्रेन वॉश किया कि 10 जून 1916 को हुसैन शरीफ ने एक रोज फजर के वक्त मक्का में मौजूद अपने घर से राइफल की बैरल निकाली और तुर्कों पर फायर दाग दिया। और ये अरब रिवोल्ट का आगाज था। उस फितने की इब्तिदा थी जिसने सिर्फ 5 साल में मुस्लिम दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उधर तुर्क यूथ तब्दीली का मुतालिबा कर रही थी। मौका सुनहरी था। लॉरेंस अरबों को बहकाता रहा, उनसे आजादी के लंबे चौड़े वादे कर लिए और यकीन दिलाया कि बरतानिया उनके साथ है। फलस्तीन पर भी अरब की हुकूमत होगी। शरीफ मक्का ने यह देखा तो सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ 30,000 कबाइल की फौज इकट्ठी कर ली। अब अरब फौज को शरीफ मक्का के बेटे अली, अब्दुल्ला, फैसल और जैद कमांड कर रहे थे। लॉरेंस शरीफ मक्का के बेटे अमीर फैसल के साथ बरतानिया का पॉलिटिकल एजेंट बनकर अटैच हो गया। अब फैसल को लॉरेंस पर इतना ट्रस्ट था जितना कि खुद पर। बद्दुओं की तरह ड्रेसिंग करने वाले लॉरेंस ने फैसल को बड़ा इंप्रेस किया और शरीफ मक्का का बेटा इस बरतानवी एजेंट के हाथों गोरों की कठपुतली बन गया। बरतानिया ने अरबों के लिए एम्यूनिशन के मुंह खोल दिए। खैर, उधर अरब तुर्कों पर आग बरसा रहे थे और उधर साइक्स-पिको एग्रीमेंट पर साइन हो रहे थे। गोरे ना जाने कब से इस मौके की तलाश में थे और वो वक्त आ गया था कि अरबों और तुर्कों की लड़ाई में गरम छुरी से सल्तनत उस्मानिया को काट कर कई पीसेस में बांट दिया जाए। वक्त की सारी ताकतें इस इलाके पर यूं टूट पड़ी थीं जैसे खाने की मेज पर भूखे। बरतानिया, फ्रांस और रूस अपनी अपनी पसंद के इलाकों पर कब्जा कर रहे थे। उधर अरबों को बचे कुचे टुकड़ों पर टरखाने का प्लान था और उन्हें यूं लग रहा था कि शायद गोरे उन पर मेहरबान होकर तुर्कों को हटाकर सब कुछ उन्हें देने वाले हैं। हालांकि यहाँ कुदरत ने अरबों को होश में आने का एक जबरदस्त मौका भी दिया। हुआ यूं कि हॉलिशकस रशिया में इनकलाब ले आए। ये वही हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन की बुनियाद रखी थी और अब उनकी पॉलिसी थी कि सारे खुफिया एग्रीमेंट पब्लिक कर दिए जाएं। इन्हीं में साइक्स-पिको एग्रीमेंट भी पब्लिक हो गया। बात खुली तो तुर्कों के हाथ तुर्क का पत्ता लग गया। उन्होंने पूरा का पूरा एग्रीमेंट अखबारों में छाप दिया। अरबों को झंझोड़ा कि भाई देखो ब्रिटिश तुम्हें किस तरह धोखा दे रहे हैं। तुर्क सल्तनत टूटने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय धोखे के। ये पढ़कर शरीफ मक्का का बेटा फैसल परेशान हो गया। आपको लग रहा होगा कि अब वो ब्रिटिश की चाल समझ गया होगा और बुद्धू बनाने वाले लॉरेंस समेत बाकियों को लटका देगा। जी नहीं, उस वक्त इनकी आंखों पर नहीं अक्ल पर पर्दे पड़े थे। हुआ यूं कि फैसल ने तस्दीक के लिए अपने वालिद यानी शरीफ मक्का को खत लिखकर पूछा, बाबा आप तो कहते थे कि ब्रिटिश प्रॉमिस एक गोल्ड की तरह होता है, जितना रगड़ो उतना ही चमकेगा। मगर उधर उनके वालिद बड़े शरीफ ने टेलीग्राम पर ठंडा सा जवाब दिया कि बेटे घबराओ नहीं, हमारे ब्रिटिश इत्तेहादी बड़े जबरदस्त हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे और हम भी उनसे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने अपने बेटे को तो काम डाउन कर दिया, मगर साथ ही खुद भी सोच में पड़ गए कि मामला वाकई क्लियर करना पड़ेगा और उसके लिए उन्होंने इजिप्ट में ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर विनगेट को लेटर भेजा कि वाकई ब्रिटिश अरबों को धोखा दे रहे हैं।
उन गेट ने जवाब दिया, योर हाइनेस, तुर्क तो हम में डिफरेंस पैदा करना चाहते हैं। आप यकीन रखें, हम आपकी आजादी के सिवा कुछ नहीं चाहते। यूं अंग्रेजों ने अरबों को आजादी के नाम पर ऐसा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि आज भी लगे हुए हैं। 1962 में बनने वाली फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में दिखाया गया था कि लॉरेंस अरब कबाइल को एक करने के लिए भेजा गया है। झूठ। आज मैं साबित करूंगा कि वो उन्हें ब्रिटिश अंपायर का गुलाम बनाने आया था। अब गोरे दमिश्क पर चढ़ाई चाहते थे, जिसके लिए वो शरीफ मक्का के बेटे फैसल को उकसाने लगे। गोरों ने फैसल को शाम का रूलर और खुद उसका राइट हैंड बनने का ख्वाब दिखाया। लॉरेंस ने अरबों के दिल में तुर्कों के खिलाफ आग को मजीद भड़काया। कहने लगा, ये तुम्हारे गुलाम थे, अब हुक्मरान कैसे हो गए। वैसे कितने सादा होते हैं ना हम मुसलमान भी। आज भी हम में नेशनलिज्म पहले नंबर पर और इस्लाम दूसरे नंबर पर है। तो फिर वही कुछ होगा जो हो रहा है। खैर, लॉरेंस अब अरब रिवोल्ट का सेंटर फिगर था, एक ऐसा मिलिट्री लीडर जो एक दिन भी फौज में गुजारे बगैर इस मूवमेंट का ब्रेन बन गया। मगर अब अगली चाल में वो अरबों के कांधे पर चढ़कर तुर्कों को पूरी तरह तोड़ने जा रहा था। प्लान था ब्रिजेस और रेलवे लाइन उड़ाकर तुर्कों की सप्लाई लाइन डिस्कनेक्ट करना। याद है ना, मैंने कहा था फाइनल राउंड। दरअसल मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के दरमियान रेड सी है, जहां सुइस किनाल के पास तुर्कों का उकबा नामी पोर्ट था। यहां से ऑटोमन अंपायर मिस्र और सिनाई पेनिनसुला पर नजर रखते। तुर्क आर्मी की लॉजिस्टिक्स और एम्युनिशन सप्लाईज भी यहीं से होती थी। मगर दूसरी तरफ सुइस किनाल ब्रिटिश अंपायर की लाइफलाइन थी, जो इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करती थी। अब यहां लॉरेंस मिशन इम्पॉसिबल पर रवाना हुआ। उकबा के अकब में 200 मील की गर्म और बयाबान वादी है, जहां से कोई जिंदा नहीं गुजर सकता। गर्मी, प्यास, गर्द और थकन डेडली साबित होती है। लॉरेंस ने मुट्ठी भर बद्दुओं के साथ इसी दुश्वार रास्ते से हमले का प्लान बनाया। ये एक खतरनाक प्लान था, मगर लॉरेंस ने सारी उम्र इसी की तो तैयारी की थी। उसने अरबों को गैरत दिलाई कि जब मैं बर्फानी इलाके का रहने वाला वहां जाने के लिए तैयार हूं तो तुम क्यों डरते हो। और उसने वो वादी क्रॉस कर डाली और फिर वहां उसने सबसे बड़े जंगजू कबीले के लीडर और तुर्कों के फ्रेंड ओदा को अपनी चरब ज़बानी और लालच से हमला करने के लिए राजी कर लिया। बगावत को कामयाब बनाने के लिए गोरों ने खजानों के मुंह खोल दिए। ऊंटों पर ताजे बरतानिया के 20,000 गोल्ड कॉइन्स से लदे थैले इस बगावत का ईंधन बने। और फिर लॉरेंस ने तुर्कों के खिलाफ गोरिल्ला एक्शन करके ब्रिजेस और रेलवे लाइंस उड़ा दी। इस काम में वो इतना एक्सपर्ट हो गया कि अरब बद्दुओं ने उसे अमीर डायनामाइट कहना शुरू कर दिया। इन कार्रवाइयों से दमिश्क से मदीना तक रेलवे लाइन पैरालाइज हो गई। तुर्क सोल्जर्स की एम्युनिशन और सप्लाईज बंद हो गई। अक्टूबर 1918 तक अरब फौज दमिश्क पहुंची तो लॉरेंस का मिशन पूरा हो चुका था। दमिश्क पहुंचने के बाद अरबों में ना खत्म होने वाले इख्तलाफात शुरू हो गए। असल प्लान ही यही था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। यहूदियों को भी तो आबाद कराना था। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले आज का हाल सुन लें। मदीना मुनव्वरा जाएं तो दिल और अश्कों पर काबू नहीं रहता। सरकारे दो आलम का दयारे मकाम ही ऐसा है। मगर वहां से 4 घंटे की ड्राइव करके जब आप मदाइन सॉलेह जाएंगे तो एक यादगार देखकर आप रो पड़ेंगे। ये वो मकाम है जहां दमिश्क से मदीने को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के आसार अब भी मौजूद हैं, जो बड़ी मेहनत से तुर्कों और जर्मन्स ने बनाई थी, जो मुसलमानों के उरूज की निशानी थी। लेकिन आज वहां उसे तबाह करने वाले लॉरेंस की तस्वीरें लगी हैं। वो इंजन जो कभी मुसलमानों को आपस में जोड़ता था, आज उनकी बेबसी पर खामोश है। तुर्कों का जोर टूट गया था। अरब को पावर देने के नाम पर ब्रिटिश खुद ताकतवर हो चुके थे और इसी दौर में ज़ायनिस्ट फलस्तीन में चुपके चुपके घुसने लगे, जिसका प्रॉमिस ब्रिटिश ने उनसे पहले ही कर रखा था, क्योंकि 2 तरफा मुआहदा किया था, एक अरबों से,
जो कि पूरा नहीं करना था, और एक यहूदियों से जो उनको वहां आबाद करना था। लेकिन एक मिनट, लॉरेंस ने तो फलस्तीन अरबों को देने का वादा किया था। असल में ये डबल गेम थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरबों से वादा खिलाफी की गई थी, जो होनी भी थी, वरना फलस्तीन तो सीरिया का हिस्सा था जो अरबों को ही मिलना था। और फिर 1917 में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बेल्फोर ने फलस्तीन में अलहदा यहूदी रियासत का ऐलान कर दिया। उसने ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा कि यहां रहने वाले फलस्तीनियों के हुकूक मुतासिर हों। और फिर हमने देखा कि आज किस तरह पूरी दुनिया इन काबिजों से फलस्तीन मांग रही है। जो हाथ जोड़े इसराइल मांग रहे थे, आज वो फलस्तीन में इमदाद के लिए जाने वाली कश्तियां तक पकड़ रहे हैं। और पूरी उम्मत मुस्लिमा बेबसी से तमाशा देख रही है। अब अरबों को एहसास हुआ कि ये उनके साथ क्या हो गया है, मगर गोरों ने उन्हें ठंडा करने का प्लान बनाया हुआ था, बेल्फोर डिक्लेरेशन, जिसके बाद लॉरेंस को इस्तेमाल करते हुए अरबों को फिर सुहाने ख्वाब दिखाए गए। शरीफ मक्का, जो अब सल्तनत हिजाज बनाकर उसके किंग बन गए थे, उन्होंने गोरों को जरा नखरा दिखाया तो जवाब में साफ कह दिया गया, यह फैसला ग्रेट ब्रिटेन का है। फलस्तीन में यहूदी आबाद होंगे और आपको ये तस्लीम करना होगा। ये अल्फाज जब मैंने पढ़े तो मुझे इन दिनों होने वाला 2 स्टेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद आ गया। बहरहाल फिर हुआ ये कि ब्रिटिश साइंटिस्ट डॉक्टर विस्टन ने कॉल्टन होटल में किंग के बेटे फैसल से मुलाकात की। उसे मालूम था कि अरब लड़ाई के बाद कंगाल हो चुके हैं। विस्टन ने कहा कि अगर मजबूत अरब रियासत बनानी है तो सिर्फ ज्यूस ही हेल्प कर सकते हैं। हम पैसा भी देंगे और पावर भी। हम तो कमजोर पड़ोसी हैं जिनसे आपको खतरा नहीं होना चाहिए। मगर हजरत अली का कौल है ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। लॉरेंस 1919 में पेरिस अमन कॉन्फ्रेंस में अरब लिबास पहनकर शरीक हुआ। वही लिबास जो पहनकर लॉरेंस ने ऐसा धोखा दिया कि अरबों ने तुर्कों के खिलाफ बगावत की और बादशाहत के ख्वाब देखने वाले ताजे बरतानिया के गुलाम बन गए। वरना उस वक्त ज्यूस की फलस्तीन में आबादकारी पर अगर किंग ऑफ हिजाज लब्बैक ना कहते तो आज गजा का ये हाल ना होता। खैर, उस वक्त अरबों की आजादी का केक कुछ इस तरह काटा गया कि मेसोपोटामिया को इराक बनाकर शरीफ मक्का के बेटे फैसल को बादशाह बना दिया गया। अलबत्ता फ्रेंच आर्मी ने फैसल को सीरिया से बाहर निकाल फेंका। फैसल के भाई अब्दुल्ला को जॉर्डन की सल्तनत दे दी गई। मगर तुर्कों की पीठ में चुरा घोंपने वाला शरीफों का ये खानदान भी ज्यादा देर इख्तिदार में ना रह सका। जब बरतानिया का इंटरेस्ट खत्म हुआ तो इब्ने सऊद ने हिजाज में अपनी हुकूमत कायम कर ली। फिर दीगर इलाकों को मिलाकर सल्तनत सऊदी अरब की बुनियाद रख दी। लॉरेंस अरब का बेड़ा गर्क करके वहां से निकल चुका था। आज अरब दुनिया एक दूसरे के कांधे पर सर रख कर खौफजदा है, मगर उनकी यूनिटी ग्रुप फोटो खिंचवाने से ज्यादा नहीं। उनकी चमकती तलवारें जोड़कर चिमटा बन चुकी हैं। बंदूकें चला रहे हैं मगर दुश्मन पर नहीं, कमजोर परिंदों पर। इसी कौम में कोई सोने के बाथरूम बना रहा है तो उसका मुसलमान भाई गजा में दुश्मन की गोली और बासी रोटी खा रहा है। मेरा एक सवाल है, चले बाद में पूछता हूं, पहले जरा देख ले कि ये सब करने के बाद लॉरेंस कहां गया, क्योंकि अब तो वो ब्रिटिश आर्मी का तमगों वाला कर्नल बन चुका था। जंग अजीम में तबाही फेरने वाला वॉर वेटरन, एक मीडिया सेंसेशन, एक सेलिब्रिटी। दुनिया के मशहूर मैगजीन्स में उसकी तस्वीरें छपती थी। लंदन से न्यूयॉर्क तक उसकी धूम थी। उसके जंगी कारनामों पर बने शो द लास्ट क्रूसेड को 10 लाख लोग देख चुके थे। वो तो विंस्टन चर्चिल और चार्ली चैपलिन से भी ज्यादा फेमस हो गया था, मगर चर्चिल उससे बड़ा नाराज था जब लॉरेंस उसका एडवाइजर बनने के सिर्फ 1 साल बाद ही उसे छोड़ गया। मगर उसने ऐसा क्यों किया था? असल में लॉरेंस प्रेस और फोटोग्राफर से छुपकर अकेली जिंदगी गुजारना चाहता था। मे बी बिकॉज ऑफ द गिल्ट ही हैड। तो उस वक्त लॉरेंस कराची शहर से भी 7 मील दूर ड्रिग रोड पर डिपो में रहने लगा। 9 घंटे ड्यूटी करता, फिर भी साल भर में 6000 लेटर्स और अपनी आप बीतियां
the meant 7 pillars of wisdom complete कर डाली। मगर फिर एक दिन जहाज का इंजन फिक्स करके उसने अपने हाथ झाड़े, बैग कांधे पर डाला और ट्रेन में बैठकर कराची से शुमाली वजीरिस्तान निकल गया। और फिर यहां भी धूम मच गई। Simple aircraftman or what? Some London papers carried an alarming piece alleging visits and influence by Colonel T.E. Lawrence in Afghan border region. ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में तहलका खेज आर्टिकल ने लंदन से लाहौर और आगे काबुल को भी हिला कर रख दिया था। खबरें थीं कि बरतानिया के एक पुरअसरार शख्स पर शुनवारी कबीले को उकसाने और अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू करने के एलिगेशंस हैं। याद आया उकसाने से कुछ? अरबों को उकसाना। और ये कोई और नहीं, वही नीली आंखों वाला मैकेनिक था जो चंद माह पहले कराची से मीरान शाह पहुंचा था। दरअसल लॉरेंस ने फिर रिक्वेस्ट की थी कि उसे रॉयल एयरफोर्स के मीरान शाह स्टेशन पर डिप्यूट कर दिया जाए। उसने भेस बदला और अब वो अफगान सरहद से सिर्फ 10 मील दूर थॉमस एडवर्ड शॉ बनकर रहने लगा। अभी कुछ महीने गुजरे थे कि बात खुल गई। खबरें आने लगी कि ये बहरूपिया टी.ए. शाह असल में लॉरेंस ही तो है जो अरबों के बाद अब अफगान कबाइल में घुसकर उन्हें उकसा रहा है। खबर लगी कि बरतानिया का सबसे पुरअसरार स्पाई अरबी इमाम बनकर तोरा बोरा की पहाड़ियों में पठानों को लेक्चर दे रहा है। अफगान किंग अमानुल्लाह को वरगला रहा है। फॉरेन ऑफिस, वॉइस रॉय, ब्रिटिश मिनिस्टर इन काबुल, रॉयल एयर और नेवल चीफ सबकी दौड़े लग गई। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने झट एक साइफर लिख डाला कि लॉरेंस का इंडिया से फौरी ट्रांसफर कर दिया जाए। रिसर्चर्स 8 दहाइयों तक इसकी जिंदगी पर खोज लगाते रहे। कई लैंग्वेजेस में उस पर 1000 थीसिस लिखे गए, स्टोरीज और कई फिल्में बनी। ये हेलमेट भी उसी लॉरेंस का तोहफा है। तुम अभी तक लाइन पर हो? जी यार, बाइक बनने में असल में टाइम है तो मैंने कैब करा ली है। असल में मौजम भाई हुआ ये था कि जब लॉरेंस मरा ना तब ये हेलमेट बना। मई 1935 की एक सुबह लॉरेंस इंग्लैंड के डोरसेट काउंटी में अपने घर से मोटरसाइकिल पर निकला और रफ्तार की हदें पार कर गया। ये ठीक किया। मेरा मतलब you should have think first। खैर फिर हुआ ये कि उसके सामने 2 बच्चे आ गए और उन्हें बचाते हुए उसका कंट्रोल आउट हो गया और वो उड़ता हुआ जमीन पर गिरा। उस जमाने में हेलमेट नहीं पहना जाता था। सर पर चोट आई और 6 रोज बाद 46 साला लॉरेंस का चैप्टर क्लोज हो गया। उसका इलाज करने वाले ब्रिटिश न्यूरोसर्जन ने मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स पर रिसर्च की, जिसके बाद ये क्रैश हेलमेट इजाद हुआ। कहते हैं कि अगर वो बच भी जाता तो चोटें इतनी शदीद थी कि या तो अंधा हो जाता या सारी उम्र बोल ना पाता। खैर मेरे जहन में तो लॉरेंस का वो कमेंट गूंज रहा है जो उसने फलस्तीन पर किया था। The sooner the Jews form it all, the better it is। और आज यहूदी पूरे फलस्तीन पर हल चला चुके हैं। मेरी आज की कहानी सिर्फ एक लॉरेंस पर थी, मगर ऐसे कई लॉरेंस आज भी हमारे आस पास मौजूद हैं। यहां मेरा एक सवाल है, क्या 2.25 अरब मुसलमानों में कोई एक भी लॉरेंस नहीं जो दुश्मनों के लिए फौलाद और अपनों के लिए मेहरबान बन सके? मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक।